friends, in this video we are going to study about replication of DNA in prokaryotes. Replication is itself is an autocatalytic property which requires dozens of enzymes and energy. Also, the replication of DNA occurs during the S phase of cell cycle, which means that each cell is having a cell cycle in which we have interphase and M phase. In the interphase we have G1, S and G2 phase, in which the synthetic phase called as the S phase, it shows replication of DNA. So replication of DNA actually occurs in the S phase of cell cycle and it is an autocatalytic property. Now since we are studying this replication of DNA in prokaryotes, so we know that in prokaryotes we usually study bacteria, and in the bacteria we see that there is no nucleus. So the genetic material is actually present inside the cytoplasm. So replication of DNA in prokaryotes actually occurs inside the cytoplasm of the cell. Here we have nucleoid instead of nucleus, and this genetic material is not extensively coiled. Unlike we see in the eukaryotes where we can see histone proteins extensively bind to the DNA, here we can see polyamines are binded to the genetic material, or we can say DNA, and it's not very extensive coiling, So this coiling is not very extensive, and also it's in the cytoplasm, and this what we can see is a double-stranded circular DNA. So in prokaryotes we usually see a circular double-stranded DNA. Now let's begin with the replication process thoroughly. The replication of DNA actually occurs in the three different stages. We call them as initiation stage, elongation stage, and termination stage. In the initiation stage, the initiation of replication in case of prokaryotes actually begins with a site or at a point which is called as Ori C site. This Ori C site is only single site, is only a one site which is present in this whole DNA. There is no other Ori sites are present, only one single Ori site is present in prokaryote. That's why it is monoreplicon, or we can simply say replicon. Unlike the eukaryotes which are having multi-replicon, means multiple Ori sites are present in case of eukaryotes, but in prokaryotes we can see only one Ori site. तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी साथ साथ में देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन में क्या क्या आ रहा है. नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एक्चुअली बायडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस. ये हम देखेंगे आगे चल के कि हमने इसको बायडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों कहा है. फिलहाल हम देखते हैं वी हैव अ सिंगल ओराई साइट. दिस इज द सिंगल ओराई साइट, एंड इफ वी एक्सपैंड दिस ओराई सी साइट वी विल ऑब्जर्व दैट हियर certain sequences are present in the Ori site. So these sites, 13-mer sequences and 9-mer sequences are present in the Ori C site. Here 13-mer sequences means we have 13 base pair sequence, which is actually AT rich region, and there are total 3 different boxes for these 13-mer sequence, and each of these boxes or these sites are actually having the 13 base pair sequence. Each of them are having 13 base pair sequence. That's why it's called the 13-mer sequence. Next that we have is the 9-mer sequence. There are 4 different boxes that represents the 9-mer sequence, and each of them are having 9 base pair sequences. Now we can see over here we have 3 boxes for 13-mer sequence and 4 for the 9-mer sequences. This 13-mer sequences is also called DUE, which is DNA unwinding element, which means actual DNA winding occurs over here. Also it is an AT rich region. The next thing is 9-mer sequence. Here we can see there are 4 boxes, and these are named as R1, R5, R2, R4. These are actually called as the DAR region, which is the DNA assembly region. Here we can see in between R1 and R5 we have IHF, and R2 and R4 we have FIS.
So IHF and FIS, what are their roles? Here, IHF means integration host factor. This integration host factor is a kind of binding site, and FIS is also a kind of binding site. When the proteins, which is IHF protein, it binds to its IHF site, it enhances replication process. But if IFS is not bounded, or this binding site is vacant, it's not bounded to its protein, then it will act as a negative regulator. So we require both IHF and FIS. These binding sites needed to be binded with their proteins so that both of them together act as a positive regulator for DNA replication. So this occurs in the 9-mer sequence, which are having the 4 boxes. Here R1, R2 and R4 have high affinity for the DNA A protein binding. Before beginning with the initiation phase, let me tell you the number of and the total amount of proteins or enzymes that is required in the initiation phase. Here we need DNA A, DNA B and DNA C protein in the initiation in order to start the replication process at the ORIC site. सो सबसे पहले व्हाट वी सी कि जो डीएनए ए प्रोटीन है ये एटीपी या एडीपी के साथ जुड़ा होता है और ये आता है ये अटैच करता है 9-mer सीक्वेंस के साथ. जैसे ही डीएनए ए प्रोटीन 9-mer सीक्वेंस के साथ अटैच करता है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए रीजन है, ये डीएनए ए प्रोटीन के साथ कॉइल करना शुरू कर जाता है. सो आफ्टर द कॉइलिंग इट इंड्यूसेस अ टोपोलॉजिकल स्ट्रेस which means negative supercoiling. तो एक टोपोलॉजिकल स्ट्रेस इंड्यूस करता है एंड दिस डीएनए ए प्रोटीन कॉजेज द डीनेचरेशन ऑफ दिस एटी रिच रीजन. तो हेयर वी कैन सी यहाँ पे हमने ओराई साइट को जो है डीएनए बना के ओराई साइट को यहाँ पे हमने डिनोट किया है. हेयर वी कैन सी द 13-mer सीक्वेंस एंड 9-mer सीक्वेंसेस. 13-mer के 3 और 9-mer के 4 बॉक्सेस हम देख सकते हैं. सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन आता है एटीपी या एडीपी के साथ, क्योंकि एनर्जी जो है ये रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के अंदर. जैसे ही डीएनए ए प्रोटीन कॉइल करता है अराउंड, जैसे ही डीएनए ए प्रोटीन जो है 9-mer सीक्वेंस के पास पहुंचता है, वैसे ही जो है ये जो डीएनए है ये अपने आप को डीएनए ए के साथ कॉइल कर लेता है, जिसके कारण जो है एक टोपोलॉजिकल स्ट्रेस इंड्यूस होता है जो कि नेगेटिव सुपरकॉइलिंग हो जाती है जिसके कारण. और इसी के कारण क्या होता है, डीनेचरेशन ऑफ एटी रिच रीजन. नाउ दिस डीनेचरेशन ऑफ एटी रिच रीजन्स मीन्स 13-mer सीक्वेंस में जो है डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है एंड दिस एक्चुअली लीड्स टू दी अनवाइंडिंग एट 13-mer सीक्वेंस. तो हम देख सकते हैं कि जो डीएनए था जो कि अभी यहाँ पे कॉइल्ड था, यहाँ पे 13-mer सीक्वेंस पे क्या हो गया है, अनवाइंड हो गया है. तो डीएनए ए ने एक्चुअल में क्या किया, 13-mer सीक्वेंस पे अनवाइंडिंग करा दी. वैसे भी हम 13-mer सीक्वेंस को जो है DUE बोलते हैं, विच इज़ डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट. तो अनवाइंडिंग जो है यहाँ पे एक्चुअल में अनवाइंडिंग होती है डीएनए की. तो डीएनए यहाँ से अनवाइंड होना शुरू होता है. कहाँ से, 13-mer सीक्वेंस से. तो जैसे ही यहाँ से अनवाइंड होता है वैसे ही हमारे पास दूसरे प्रोटीन्स आ जाते हैं विच इज़ डीएनए बी एंड डीएनए सी प्रोटीन. यहाँ पे डीएनए बी जो है वो हेलिकेज का काम करता है. और हेलिकेज क्या होता है, हेलिकेज हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता है. तो ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, जो बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये इनको क्या करेगा, क्लीव करने का काम करेगा डीएनए बी प्रोटीन. और डीएनए बी प्रोटीन जो है अकेला 13-mer सीक्वेंस पे नहीं आ सकता, उसके लिए उसको चाहिए एक लोडर, एक मददगार, जिसको हम कहते हैं डीएनए सी. डीएनए सी इज अ हेलिकेज लोडर. सो डीएनए सी क्या करेगा, डीएनए बी को लेकर जाएगा 13-mer सीक्वेंस के पास और ये जो डीएनए बी है वो क्या करना शुरू कर देगा, क्लीवेज करना शुरू कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स की. और जैसे ही 13-mer सीक्वेंस पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना शुरू होंगे तो हम आगे देखेंगे कि एक इस तरीके से हमारे पास जो है वो डीएनए जो है दोनों दो टेम्पलेट्स हैं हमारे पास डीएनए के, वो खुल जाएंगे. जैसे ही यहाँ पे खुल जाएंगे हम देख सकते हैं कि
इनके खुलने के बाद क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड है यहाँ और यहाँ जो डीएनए स्ट्रैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो जाएगी कि डीएनए फिर से खुद को बाइंड करना चाहेगा। तो वो फिर से खुद को बाइंड ना कर ले, उससे बचने के लिए हमारे पास फिर आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है ये इस अनबाइंडेड रीजन के साथ लग जाते हैं और ये जो है इस तरफ डीएनए को खींचते हैं। मतलब ये इस तरीके से डीएनए को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से खींचते हैं और इस रेप्लिकेशन बबल को ओपन रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्टेबलाइज करते हैं इस बबल को। और यहाँ पे जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इसके खुलने के कारण, क्योंकि ये भी कॉइल्ड था, तो जैसे ये कॉइल खुला और इतना बड़ा रेप्लिकेशन बबल बना, तो जो बाकी का स्ट्रैंड है आगे पीछे का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होना शुरू हो गई। अब इतनी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गई तो उस इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई कि एक और एंजाइम को यहाँ पे आना पड़ा। दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज 2 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए गायरेज। तो टोपोआइसोमरेज 2 आता है यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स यानी कि डीएनए की बैकबोन को क्या करेगा, निकिंग ऑफ करेगा। निकिंग ऑफ मतलब कट करना शुरू कर देगा। तो कट करके इनको फिर से जो है डीएनए लाइगेज आके इनको सील करता जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज 2 या जिसको हम डीएनए गायरेज बोलते हैं, ये यहाँ पे आके स्ट्रेस रिलीज करने का, टेंशन को रिलीज करने का काम करता है। जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गई थी उसको कम करने का काम टोपोआइसोमरेज करता है। तो यहाँ पे हमने इनिशिएशन में अभी तक क्या देखा है कि वी हैव ओराई सी साइट जहाँ पे इनिशिएशन शुरू होती है, एंड दिस इज द ओराई सी साइट्स जहाँ पे हमारे पास 13 एंड 9 सीक्वेंस होते हैं। और 9 और 13 के अंदर क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये भी हमने देख लिया। फिर किस तरीके से प्रोटीन्स आके यहाँ पे बाइंड करके इस रीजन को जो है अनवाइंड करना शुरू कर देते हैं, और अनवाइंड करने के बाद किस तरह से इसको स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड विद द हेल्प ऑफ टोपोआइसोमरेज 2। तो ये हमने अभी तक देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से रेप्लिकेशन जो है शुरू होती है। यहाँ पे अगर मैं इस रीजन को आधा काट दूं तो ये जो है एक वाई रीजन यहाँ मिलेगा और वाई रीजन मुझे यहाँ मिलेगा। तो इस वाई रीजन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हमने देखा कि किस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स और टोपोआइसोमरेज जो है इसको स्टेबलाइज करते हैं, और डीएनए बी प्रोटीन जो कि एक हेलिकेज का काम करता है वो किस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ता जा रहा है। तो हमारे पास ये जो एक टेम्पलेट है, एक जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो खुल जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो है वो एक पेरेंट स्ट्रैंड या एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। और हमें पता है कि ये जो दोनों टेम्पलेट्स होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड्स के, ये दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। मतलब अगर एक 3' to 5' डायरेक्शन का होता है तो दूसरा 5' to 3' डायरेक्शन का होता है। तो ये हमारे पास एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है डीएनए का। तो ये हमारे पास दो टेम्पलेट जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद हम इनिशिएशन में देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमर। हमेशा याद रखना इनिशिएशन तभी मानी जाएगी अगर उसमें आरएनए प्राइमर डाला जाएगा। तो आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर एक छोटा सा एक स्ट्रैंड होता है आरएनए का, और इस आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेज। और प्राइमेज को यहाँ पे हम जो है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में हम इसको कहते हैं डीएनए जी प्रोटीन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारा एक आरएनए प्राइमर है। इसको सिंथेसाइज किया गया है बाय दी प्राइमेज एंजाइम जिसको हम डीएनए जी बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जी जो है या जो प्राइमेज जो है वो क्या करता है, वो आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करके कहाँ लगा देता है, वो उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री लगा देता है। पर लगाने का भी एक तरीका है कि ये जो हमारे पास आरएनए प्राइमर है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही लगता है। ये हमेशा 5' to 3' में ही लगता है क्योंकि 3' एंड जो है वो एक ओपन एंड होता है, और 3' में जो है OH जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3' में न्यूक्लियोटाइड ऐड करना
ईजी होता है, तो यहाँ पे जो है 3 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, तो इसीलिए आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही ऐड होता है। तो यानी कि आरएनए प्राइमर का जो टेम्पलेट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारे पास क्या है, एक टेम्पलेट है, पेरेंट स्ट्रैंड है। और यहाँ पे हमें पता है कि आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से शुरू होता है, तो हियर वी कैन सी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है हमारे पास आरएनए प्राइमर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ हमारे पास जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो यहाँ से क्या है, 5 प्राइम है, इस तरफ से 3 प्राइम था तो इस तरफ से 5 प्राइम है, तो यहाँ पे तो आरएनए प्राइमर लग नहीं सकता। तो आरएनए प्राइमर किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत में अभी हेलिकेज यहाँ तक ही पहुँचा है, तो अगर हेलिकेज यहाँ तक पहुँचा है तो आरएनए प्राइमर किस तरफ लगेगा, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो यहाँ तक ही जो है अपने आप को कवर कर पाएगा। जैसे ही हेलिकेज धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचता जाएगा, तो वैसे ही धीरे धीरे करके बार बार इसको आरएनए प्राइमर इस तरफ ऐड करते रहने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ऐड हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड यहाँ 5 प्राइम है, तो आरएनए प्राइमर का जो 5 प्राइम है वो इस डायरेक्शन से, मतलब कि इस तरफ से शुरू होगा। दिस इज दी फॉर्क एंड एंड दिस इज दी फ्री एंड। तो फ्री एंड है यहाँ आरएनए प्राइमर और यहाँ पे कहाँ पे है, फॉर्क एंड पे है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो मल्टीपल प्राइमर, एक साइड तो 3 बार आरएनए प्राइमर लगा हुआ है और एक जगह पे इस वाले टेम्पलेट पे सिर्फ एक ही बार लगा हुआ है। तो रीज़न यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जिस कारण हमें आरएनए प्राइमर, क्योंकि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे ही लगेगा, तो उस कारण हमें यहाँ पे मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स लगाने पड़ जाते हैं, यानी कि मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स लग जाते हैं खुद ही। क्यों, क्योंकि ये जो है बाहर की तरफ है, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में इसको लगाना पड़ रहा है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज़ बाय डायरेक्शनल। एक हम देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रही है और दूसरी हम देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रही है। तो एक तरफ जो कॉपी बन रही है, एक तरफ जो रेप्लिकेशन हो रही है वो अंदर की तरफ है, दूसरी बाहर की तरफ है, तो दो अलग अलग डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन हो रही है। दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जगह कॉन्टिन्यूस हो रही है, एक जगह टूट टूट के हो रही है। Here we can see कि एक हमारा कॉन्टिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, दैट्स वाई इट्स अ सेमी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एंड दो डायरेक्शन में है तो बाई डायरेक्शनल। और तीसरी चीज़ ये है कि जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे तो यहाँ पे देखो ये नया डीएनए बनेगा और ये एक नया डीएनए बनेगा, मतलब कि दो डीएनए बन जाएंगे। एक डीएनए से हमारे पास दो कॉपीज़ निकल आएंगी, एक कॉपी होगी उसमें पेरेंट डीएनए का एक टेम्पलेट होगा और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। दूसरे में भी यही चीज़ होगी, एक पेरेंट का टेम्पलेट होगा, दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक पेरेंट टेम्पलेट है और दूसरा नया वाला, और यहाँ पे भी एक पेरेंट टेम्पलेट है और दूसरा नया वाला। तो ये हो गया हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव, semi discontinuous, and we can see this bidirectional. So that's why we call DNA replication semi discontinuous, semi conservative and bidirectional. और यहाँ तक हमने देख लिया आरएनए प्राइमर तक लगने तक की जो हमारी प्रोसेस होती है। यहाँ हमारे पास आरएनए प्राइमर लग चुका है और यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग एंड्स पे लगता है, एक होता है फ्री एंड और एक होता है फॉर्क एंड। रीज़न ये है कि हमारे पास एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं पेरेंट डीएनए के, उस कारण। तो यहाँ तक हमारी जो है इनिशिएशन प्रोसेस खत्म होती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द एलोंगेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।